हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र बीएड सीईटी एंड ईएलसीटी को लेकर एक और अपडेट आ चुका है गाइस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैप राउंड 2। एग्जैक्टली कैप राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, वो आर एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, लेट्स टॉक इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो गाइस, नोटिस पब्लिश हो चुकी है, यू हैव टू कम एट ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिस नंबर 2 फॉर कैप राउंड 2। लेट्स टॉक। आई होप जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिल चुका था, आपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, आइदर फ्रीज और बेटरमेंट। अब राउंड 2 को लेकर इंपॉर्टेंट नोटिस गाइस, कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड not to verify the details filled in CET application form as it was only for the CET examination. Yes, college को verify करना है only CAP application form, right? Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate up to the last date of admission round 3. ये तो हमने previous वीडियो में भी देखा था, right? अब देखो guys, candidates who have made mistakes in filling the marks of 10th, 12th, graduation or post graduation degree have been rejected by the college can edit their CAP application form for round 3 and fill the new college options for round 3. अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है मार्क्स एंटर करने में और आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है, सो आप राउंड 3 के लिए अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। उसको लेकर तो विंडो ऑलरेडी स्टार्ट है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, कि वहां आपको फ्रेश ऑप्शंस देने हैं कब, 6 अक्टूबर को। नाउ who are eligible for round 2? Candidates who have been allotted seat other than first preference and have not reported to the college. other than first preference मिला था, आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं किए, not opted, freeze, betterment option through candidate login, आपने कुछ भी नहीं किया, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। Second, candidates who have been allotted seat other than first preference and has paid the one-time seat acceptance fees, that is 1000 rupees, and opted freeze or betterment option through candidates login but have not reported to college for confirming the admission. आपने बस रिपोर्ट नहीं किया है कॉलेज को, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2, राउंड 2 में कौन एलिजिबल नहीं है भैया? फर्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलोकेटेड college of first preference and have verified their documents and have been admitted in the college through college login and paid the college fees will not be considered for allocation in round 2, क्योंकि आपका एडमिशन तो ऑलरेडी हो चुका है राउंड 1 में। दूसरी बात, कैंडिडेट who have been allotted seat other than first preference as per the preference given by the candidate and freeze the allotted seat by paying the seat acceptance fees, that is 1000 rupees through candidates login and confirm admission on the allotted seat through college login. Such admitted candidates are not eligible for round 2. Either आपको first preference मिला, आपने freeze किया, other than first preference मिला, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। थर्ड वन, कैंडिडेट्स who have allotted college of first preference as well as other than first preference and have verified their documents and have been rejected by the admitting college due to discrepancy in application form, document or mismatch in document and application form are not eligible for allocation in round 2. राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिस्क्रिपेंसी शो कर रहे हैं। सर्च कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर राउंड 3। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला या कोई भी अदर मिला, आप रिपोर्ट करने गए कॉलेज और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रहे, देन गाइस आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको थर्ड राउंड के लिए ट्राई करना है। नाउ, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ डायनामिक एलोकेशन फॉर राउंड 2। राउंड 2 में एग्जैक्टली आपको कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगी? काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे जो कॉलेज मिली है वो 4th नंबर की मिली है, ठीक है, और ये मेरे सारे ऑप्शंस है, मैंने 10 ऑप्शंस दिए थे, सो क्या मुझे अपर प्रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा या फिर, क्योंकि मैंने बेटरमेंट सेलेक्ट कर लिया है, या फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी एक कॉलेज मिल जाएगा? सो गाइज आपको 1, 2, 3 इसमें से ही कोई कॉलेज मिलेगा। अगर ये कॉलेज नहीं मिले देन ऑटोमेटिकली आपको 4th वन वापस अलॉट हो जाएगा। सी ओवर हियर, कैंडिडेट्स who have been allotted seat other than first preference in round 1 and have opted betterment option and paid the seat acceptance fees 1000 rupees. Once upward preference is allotted to such candidate as per the college option or preference filled prior to round 1, his earlier seat allotment shall stand automatically cancelled due to application of logic of dynamic allocation. ऊपर की कोई भी कॉलेज अगर मिल गई तो ये जो सीट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। If the candidate is not allotted seat in round 2, then the seat already allotted in round 1, as the case may be, shall be retained automatically, but the candidate will have to report to admitting college or institute for confirmation of admission again for round 2. क्या करना है भाई? 4th नंबर की कॉलेज मिली थी, यहाँ कोई भी नहीं मिला तो 4th वाली ही वापस अलॉट होगी। आपको क्या करना है? वापस वहीं विजिट करना है और एडमिशन ले लेना है। कॉलेजेस शुड कंफर्म द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 2
though they have been allotted same college in round 1. If the candidate does not report to the college in specified period, his seat will stand forfeited automatically. आपकी सीट जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो. एंड ऑल द कैंडिडेट्स वो बिलोंग टू द कास्ट, उनके जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स है सच एज द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, आपने जो भी रिसिप्ट अपलोड की थी राउंड 3 की जो लास्ट डेट है वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है. The candidate belonging to reserve category who have secured admission on seats for reserve category in round 1 and round 2 on the basis of application of receipt, ठीक है आपने रिसिप्ट अपलोड की थी, are required to upload the necessary original certificate on or before the last date of round 3. जो फेल होंगे भाई उनको एडमिशन वहाँ नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फ्रॉम ओपन कैटेगरी. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो गाइस दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर राउंड 2. आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है रीड कर लेने हैं और फिर पार्टिसिपेट करना है. इफ एनी एडमिटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 एंड राउंड 4, देन आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन कैंसिल करना है और फिर पार्टिसिपेट करना है इन राउंड 3 एंड राउंड 4. ऑल्दो हमें जो सीट है वो कैंसिल करना ही नहीं है. बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला यार, बड़े अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है और कॉलेज मिल चुका है. अब राउंड 3 में जहाँ सीट कम है, राउंड 4 में कोई चांसेस नहीं बनते, तो क्यों कैंसिल करना. ठीक है, ध्यान में रखना है. द कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस कैटेगरी इफ हैव नॉट रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स देन he or she should edit application form to eligible for allocation through open category in round 3 and round 4. ठीक है. 6th one, most important one, there may be very few seats available for round 3. Hence, candidates are requested to seek the admission in allotted college, though the same college is allotted to the candidate in round 2. जो भी round 2 में आपको कॉलेज मिली है गाइस, वहाँ विजिट करो और अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर लो, क्योंकि इसके बाद काफ़ी कम सीट बचेगी. सीटी सेल ने भी आपको बता दिया है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 मे बी वेरी लेस. हेंस कैंडिडेट शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन. गाइस केयरफुली ध्यान में रखना है कि राउंड 2 में जो हमें कॉलेज मिलने वाली है वहाँ हमारा एडमिशन तय हो सके. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. जो भी आपके डाउट्स है आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन. एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर प्रिपरेशन यू कैन जॉइन अस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशंस. एंड टू इंटरेक्ट लाइव विथ अस कॉल ऑन 8383818888. Don't forget to download our app to get the free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.